gentlemen, thank you for joining us again on another session of Therapy Session. Yes, as usual, my speech is I'm no psychiatrist, but I just love talking. And if you want to talk, want to connect, or share your stories with on our platform and with us, because I like sharing stories and I like to hear stories as well. That's what makes me such a good or rather bad boyfriend. Regardless, in this episode, I'm going to introduce you to two very new people and two very eccentric people, if I may say so myself, because they're very, very nice at the same time. Before that, the team, Jaideep and Pratyush. Hi. What up, people? Hi. And that वेलकम Pratyush, गाइस। पहले तो यार तुम लोग की ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रिया। मतलब तेरे को तुम लोग introduce अच्छा नहीं काम किया कर रहे हो, अभी। अच्छा सही कि नहीं? अभी तो क्या अभिषेक बोला यार, अभिषेक हाँ, मैनन, I said माई सेल्फ Jaideep and अभिषेक Pratyush. मैनन। जयदीप एंड प्रत्युष क्या आदमी है भाई तू? एक ही बात है। But that is Menon. That's the eccentric personality of him. He's very enthusiastic. And also we have Srijit. Srijit, what about you, bro? On the only commerce guy here. The only totally. commerce guy, exactly. So Yes, by the way, yes. FYI, the four people, me, Jaideep, Pratyush, and Abhishek are science students, and she is the although regardless. Totally. The थैंक calculator. गॉड हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है, नहीं तो अभी श्रीजीत अभी बाहर बॉयकॉट हो गया होता ऑड वन आउट के लिए। फनी अपने एकदम भाई सेक्युलरिज्म में जीते, साथ में यूनिटी के साथ जिएंगे। अबे तू बड़ा होके साइंटिस्ट बनेगा, तेरा अकाउंट संभालने वाला मैं ही हूँ। मत इज्जत उतार। You have to do that for me as well, bro. नहीं। Come on. You can't leave me hanging. So, okay. You guys, thanks for being on the show first off. And then now, Menon, if you want to talk about good about the show, you can. But before that, how has the lockdown been treating you? I see, Menon, you let your hair grow out, and Srijit has been like gangster. Srijit has turned to a Srijit is actually trying to become and adapt other communities and religion also. Yes. What about you, Menon? What have you been doing? I know your dissertation is coming up. देख प्रणय, देखो पता ही है कि मेरा पूरा डिसर्टेशन कैसा गया है। थीसिस टीयर व्हिच एनी ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैन एवर फाइंड। ठीक है भाई, तूने थीसिस मेरी थीसिस देखी है क्या कभी? भाई कम से कम तू पेंडेमिक के साथ नहीं गुजरा यार। एक एक्सपेरिमेंट करने मिलता ना तो मैं बोलता कि मैं मास्टर सही में पास हो गया हूँ। समझ रहा है? लकी है भाई, एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैंने। बस ऐसे ही गया है प्रणय। और भाई जैसे मैंने बोला, जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, दूसरों को ऐसे चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, साथ में थेरेपी सेशन तुमने टर्म दिया भी है, इसको टैग दिया है, जो एक्चुअली होप कि दूसरों के लिए सही में एक थेरेपी सेशन ही बन के बाहर निकले। क्योंकि आजकल की दुनिया में दिख रहा है तो किस तरीके से लोग अंदर ही अंदर घुसे पड़े, तो लोगों को दे हैव टू बी मोर ओपन। क्यों हंसा भाई प्रत्युष? कौन सी सीट से खड़ा हुआ है भाई? तमिलनाडु से कौन सी सीट से खड़ा होने वाला है इलेक्शन में? अभी सीएम का सेक्रेटरी मर गया सुना मैंने, समझ रहा है? इतना सपोर्ट सीएम का सेक्रेटरी मर गया। तो मैंने honestly बोलो, that is a really good thought, and all three of us really appreciate that. But Pratyush, your thoughts? You've been laughing ever since he said that, and the reason why we're laughing is because Menon saying such stuff is very funny. Funny. पहले से हूँ इन सबके साथ जो रहा हूँ मैं। But Srijit, coming to you, so Menon's dissertation, as you've seen, he's not been able to do even one experiment due to lockdown. How's your final exams been going on, by the way? They are just keeping it postponing, man. It's just they have started postponing on from May से चालू किया। मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। मैं बस चाहता हूँ मैं ग्रेजुएट होके मरूं, पर वो नहीं करना चाहते ऐसा कुछ। ये उन लोग ना ही मेरे को मार रहे, ना ही एग्जाम देने दे रहे। क्या करूं यार मैं? क्या करूं मैं? 3 महीने से एग्जाम really, हाँ, I think that 3 Idiots dialogue is really one. You're not able to live, you're not able to die. क्या करे? लोगों को मारते। एक तो भाई सबको पता है कि यहाँ पे मसाला खाने वाले लोग है भाई। एग्जाम देने आएंगे, सबके आंख में थूक के चले जाएंगे उन लोग। उसके ऊपर से चल के जाऊंगा तो कोरोना हो जाएगा मेरे को, पता है? So just for our viewers out there, just a minute. So you see why I told these guys are very eccentric, and that's why I love them both. Seriously, do. I mean, like, you just sit and have a conversation with these two. It's like an hour goes by without a problem. So before we go any further, I want to talk about our geographical location, where we are.
So Jaydeep, Pratyush, and Srijit are in Ahmedabad, whereas me and Menon are in Tamil Nadu, but in different cities. But for मतलब people of सोच North India, Tamil Nadu is a state, not a city. Alright? एंड मद्रास surprisingly I came एंड here. सुनो, और सारे साउथ इंडियन मद्रासी नहीं होते, मद्रास तमिलनाडु का है, केरला का नहीं। इडली केरला का। नहीं और and मद्रास surprisingly को bro, चेन्नई I भी बोलते came हैं, here. है? और मद्रास को क्या चेन्नई भी मद्रास? बोलते हैं। वो खाली तू ही बोलता होगा, पता नहीं। मैंने तो भाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु सबको मिलके उन लोग मद्रासी बोलते हैं। बहुत मतलब सोच तो सही, क्या दिमाग चल रहा है लोगों का यार। I swear दिमाग to देख, God, हम लोग first day I came to ऐसा Ahmedabad, right? So कम्युनिज्म I said ऐसा I'm a देख, South Indian. हम लोग ऐसा एक साथ कम्युनिटी कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तुम लोग। अच्छा वो साउथ इंडिया, वो देख वो साउथ इंडिया, हाँ समझ रहा है? ये ठीक यूपी, है, राजस्थान, मध्य मैं प्रदेश, कल वो उठ साउथ के इंडिया। नहीं फिर हाँ मैं अगर कल नहीं उठ के एक ऐसा ही होता, राजस्थानी को मैं कल उठ के एक ऐसा ही होता। राजस्थानी को पंजाबी बोलूंगा ना तो मीटू हो जाएगा मेरे ऊपर। तेरे को पता है? हैं? तेरे को पता है वो चीज? सारे केरला वाले मद्रासी। अरे यार वही हमारे तो स्टेट ना। का ही नहीं है मद्रास यार। वो तो समझो तुम लोग। मद्रास वही हमारे तो। स्टेट का नहीं है। I came to Ahmedabad. ये बंदा Pratyush was my roommate, right? So he was like, "Where are you from?" I'm South India, Chennai. Chennai, तो मतलब South India हो गया ना? South भाई, India हो it's गया in ना? Tamil Nadu. It's in Tamil Nadu. I actually speak Telugu at home. Like नहीं वो South Indian है. Telugu, तमिल, नहीं। आंडू गुंडू गुंडू गांडू सब सेम ही नहीं है। भाई, वो गूगल भी नहीं करेगा, वो ऐलान ही करते लोग, सीधा ऐलान करते। तू साउथ इंडियन हैंस प्रूव्ड कि केरला में लिटरेसी और साउथ में लिटरेसी क्यों ज्यादा है। ऐसे नॉर्थ वाले लोग आ जाते हैं ना जिनको डिमार्केशन नहीं मालूम होता। नहीं भाई, तू प्रत्युष को पॉइंट है ब्रो, पॉइंट इंडियंस है के ब्रो। साथ एसोसिएट करेगा तो नॉर्थ इंडियंस को भी, नॉर्थ इंडियंस के लिए मेरे को बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा मत जस्ट कर। बोलते ना जोक अपार्ट। The reason why I brought this up is now Menon is in Madurai, right? And apparently he's experiencing power failures for the first time in his life. And me being in Tamil Nadu for 20 No, almost 17 this is not years. the first time in life. Actually, I was in Kerala also. वहाँ पे भी ये सब power fluctuation का तो होता ही है. But there was a, मतलब बोलते ना fixed timing था कि 1 घंटे के लिए जाएगा. But इधर ऐसा नहीं है. मैं उठता हूँ पावर कट से, चल अच्छा पावर कट हो गया, चलो उठने का टाइम हो गया. फिर ऐसे 12-1 बजे तक, अभी तक तेरे साथ बात कर रहा हूँ, अभी तक करंट नहीं आया है भाई. बे ये बात पे एक चीज है, ये मतलब केरला में सब मतलब स्पेसिफाइड टाइम पे, मतलब एक शाम को 7 to 8 पावर कट होता है, ठीक है? और सब लोग बस एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, उनका जिंदगी चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे चल रहा है। We are so, मतलब इतना एडजस्टमेंट कब से करने लगे हम लोग ब्रो? हम मतलब तेरे को पता है कि आज भाई पर पूरा जिंदगी तू 1 घंटा निकाल रहा है केएससीबी वालों के लिए, वो कौन है तेरा? कौन है? तू पे कर रहा है उनको, एक बार फोन भी नहीं कर रहा कि मेरे को हर दिन यहाँ पे 1 घंटा क्यों पावर जा रहा है, कोई नहीं पूछता यहाँ पे, बस जा रहा है वो तो जाता रहेगा। लाइफ ही पूरा इंडिया में तो एडजस्टमेंट ही चल रहा है भाई यहाँ देखना भाई, यहाँ अहमदाबाद में ना मम्मी सुबह उठाती है ना तो पंखा बंद करती है, वहाँ गवर्नमेंट आके तेरा पंखा बंद करता है। गवर्नमेंट आके पंखा बंद करता है, वो अलग लेवल शिट, अलग लेवल का ही है भाई। तू पर पंखा बंद होने के बाद पंखा बंद होने के बाद तू जाके चालू तो कर सकता है ना। मैं सिर्फ बटन दबाऊंगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहा है? वो इतना अच्छा प्रोविंसी का ही नहीं मिल सकता। It's been literally Pranay Reddy. It's been around 7 hours, हाँ bro, 7 hours से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई। लाइफ को बोलता है ना एक डिसिप्लिन मिला है ब्रो। सब जैसे मैंने देखा, I previously watched your वो जयराज और एशलिन वाला वीडियो, उसमें भी उन्होंने बोला ना कि एक्चुअली एक डिसिप्लिन, तूने भी बोला था कि एक डिसिप्लिन मिलता है। वो बात सही है एक्चुअली, मेरे को काफी एक्सटेंट तक सही लगी कि सुबह उठने का जो भी है और पूरा जो रूटीन है वो पूरा चेंज हो गया है। अपने का नॉर्मल रूटीन था उससे एक अलग सा पूरा एक बोलते हैं ना पूरा सिस्टम बन चुका है अब तो। बट अभी टूटेगा फिर वापस रूटीन में अपने जाने वाले, वो एक अलग सा दुख है। जोर से श्रीजीत, मेनन को ऐसे दिखा दे थोड़ा। एसी मेनन, ये देख चलने वाला एसी, वाओ। सी समझ रहा है तू? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे तेरे को मैं एसी दिखा सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, आर यू हैव व्हाट अबाउट दैट? क्या हो रहा है देख, फील हो रहा है करंट तेरे को? But it's true, like for people who don't know back home, like in Tamil Nadu, and I didn't know about Kerala, but
there are scheduled power cuts, at least in Chennai. Like, you know, there was a time when growing up when I was like, every day 2 hours there used to be a power cut during the day, and you just have to adjust with it and go on because there's not enough power. And then ये now it's not scheduled anymore. Now it's unscheduled. You have power cuts. ये सारे मद्रासियों का यही है भाई. ये पूरे मद्रासियों के साथ यही चल रहा है. यही चल रहा है. हर जगह एक शेड्यूल्ड पावर कट है. यहाँ फिर शाम को, यहाँ फिर दिन में, सब बस एडजस्ट किए जा रहे. लाइफ पूरा एडजस्टमेंट है. ऐसा भी एक एडजस्टमेंट है अलग सा. That is one thing which I really like about Ahmedabad. When I went there, it's like power cuts. There are no power cuts. Continuous power. कंटिन्यूस पावर. यहाँ पे पावर कट 1 मिनट के लिए हुआ तो टॉरेंट के सीईओ को फोन करके गाली देते. समझ रहे तू? ये हो रहा है यहाँ पे. बट रेड्डी यहाँ पे the major one thing which I liked over here है ना, वो है stargazing. मतलब the climate over here is such, मतलब बोलते ना, it's less polluted. But actually the difference can also be seen in Ahmedabad. You know, अभी stargazing यहाँ पे भी बहुत सही है bro. Pollution बहुत कम हो गया, बहुत हद तक. वहाँ धुआं दिखता है अभी फिलहाल. फिर भी यार यहाँ से थोड़ा बहुत वो सही बात है. पर ऐसे एटलीस्ट पंखे के नीचे सो और धुआं थोड़ा दिख जाए तो ठीक है ना भाई. ठंडी गर्म Bro, that's a totally different topic which we are going through. ठीक है, वो बात यहाँ नहीं ला सकते. नहीं. धुआं वो जो गाना है ना, धुआं पकड़ के ऊपर आए, ऊपर से सब साफ दिखे. ऊपर सब साफ दिखे. Actually, that's not correct, bro. They have misquoted the line. Speaking of songs and lyrics, and you guys are actually pretty good singers, you know. And Srijit, you guys, you also misquoted something, bro. Not you guys, him. All right, I'm just बोलते ना, an amateur. तो मतलब man is like us singing में. मैं भी amateur ही हूँ, bro. Maybe a bar above, but not that far. Srijit, if he's saying he's an amateur, but guys, he's actually performing, or rather performed in a radio show this Sunday. What is the show? You gotta tell us. What's it about? It's 21st June, World Music Day. So I'm gonna be live at Facebook tomorrow 11 a.m. sharp at Amchi Mumbai's FB page. It's just about a session or 2-hour session of I think 7 to 8 of singers, and about मतलब हम सब मलयालम या हिंदी सॉन्ग्स ही गा रहे होंगे और तमिल भी होगा. तो मद्रास गाइस, you know. बस वही होने वाला है. A request bro. It would be nice if you present a short clip over here in front of everybody, ताकि लोगों को पता चले कि ओके एक्चुअली हमको कल्टी को सपोर्ट करना है. अच्छा. Let me decide that you deserve the show or not. Oh! दुख रहा है क्या भाई? बोलो भाई, क्या गाना, क्या पेश किया जाए, बोलिए. कोई नहीं, कल कौन सा उसका छोटा सा कुछ सुना दे. कल क्या गाने वाला है? कल चलना एक हिंदी जो मेरे को आता है, अभी मैं वही गा लेता हूँ. मलयाली आता है श्रीजीत? मलयाली आता है? अरे वेट अ सेकंड. जयदीप को कोई एक मलयालम गाना बहुत अच्छा लगता है. Which one is that, जयदीप? मलरे. वो गाओ. वो गाना पड़ेगा. Why not? तो एक मिनट का ब्रेक मिलेगा मेरे को. लिरिक्स देखना पड़ेगा. देख ले भाई. 1 second. Please do. तो 1 मिनट के लिए मैं Srijit is preparing. JD ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, है ना? Yes. Let him take the chance. Let him take his time to prepare. इनकी important है ये सब चीजें. You know, in moment, this is one moment, bro. But you have to be prepared for that moment, है ना, bro? क्या बोलता है प्रतीक? और मैंने जिंदगी में क्या करना है? बस जो तू कर रहा है वही नहीं करना चाहता. ठीक है, तो मैं गा लूं. चलो. अरे इरशाद. मलरे. जयदीप के लिए मलरे. चलो एक काम करते हैं, तू जब स्टार्ट करे हम म्यूट पे डालते हैं उस टाइम पे, तो किसी का डिस्टर्ब नहीं आएगा. डिस्टर्बेंस. തെളിമാനം മഴവില്ലിൻ നിറമണിയും നേരം നിറമാർന്നൊരു കനവിൽ തെളിയുന്ന പോലെ
പുഴയോരം തഴുകും നീ തണുനീരൻ കാറ്റും ഉലകങ്ങൾ ഇഴയേതൊരു കുഴലൂതിയ പോലെ കുളിരേകും കനവിൽ നിൻ കതിരാടിയ കാലം മനതാരിൽ മധുമാസം തളിരാടിയ നേരം അകമരുവും മൈലിനകൾ തുയിലുണരും കാലം എന്നകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം അഴകേ അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശില അഴകേ മലരേ എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ ഓ ഓ बढ़िया 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 हाँ भाई भाई मजा आ भाई गया इसके मजा लिए आ तो गया cheers भाई cheers cheers Cheers. I could see Jaydeep lip syncing to that, like the lyrics to it. But मैंने- for people भाई- out there, मैंने बहुत सुना है भाई बहुत so सुना for है people out there, explain the meaning of this song though. So I think that would be great. मलरे इट्स Yeah. अबाउट मलर तो मतलब हनी इट्स रिफरिंग टू द मतलब गर्ल एज हनी मतलब मलरे बोलते हैं ना तो मलर मतलब वो होता है हनी होता है समझ रहा है हनी तो लड़की को वो उस तरह से रिफर कर रहा है कि मलर है और उसके अंदर एक्चुअली ये जो मूवी होता है उसके अंदर वो लड़की का नाम भी मलर होता है अच्छा तो हाँ तो पूरा एक्चुअली सॉन्ग उसके नाम पे ही बना दिया है पूरा टोटली उस तरह से और कुछ नहीं लिरिक्स तो फिर double hard attack, words man double attack, Malayalam Reddy- hard double words attack. Reddy, Double you should attack. watch Premam. You should watch Premam. It's a very nice movie it's to watch. actually a good movie you know बहुत सही It's a मूवी very nice movie. प्रेमम देख अबे तमिल में है कौन सा? प्रेमम अरे अपना अपना Ah, it's having a dubbed version. डब्ड वर्जन नहीं ब्रो एक्चुअली तमिल में एक वर्जन Remake है. हाँ रीमेक है भाई अपना अरे यार नागार्जुना का बेटा है ना तमिल में है कि तेलुगु में है? तेलुगु में वो नागार्जुना आई डोंट नो नागार्जुना तेलुगु है ना मद्रासी Now see, we can't blame others. समझ रहे हैं? We can't Madrasi. blame others for तो it. हम पे चालू होता है भाई भाई इंडस्ट्री के थोड़े एक्टर्स का नाम नहीं पता मेरी गलती नहीं है We generalize a lot of stuff nowadays. Forget geographical locations. I think that's what social media has done. It's brought our world closer together, but it's also, I guess, not reflecting what things should be. Now, I'll give you a simple example. Black Lives Matter, an amazing movement, a movement which is definitely needed, but it's not our movement. See, I would willingly fight for Black lives. I would willingly fight for any of them because it's equality and it's rights which is needed for them. But when people of this country ignore our own problems and focus on somebody else's, Exactly. then it becomes a problem for us. So who will fight for the people in our country? You get what I'm saying? I'm not saying don't support Black Lives Matter. Please don't get It's that actually a good cause. They're supporting something, but there are so many issues in our country right now. You know, we are so attracted to the West side. We are so much attracted to the West side. We are actually taking many things from them and actually supporting them a lot more than us. You know, हम लोग वेस्ट साइड से completely attracted है bro. मतलब एक आदमी मरा वहां पे. I'm not saying the thing happening is bad. I know that. मतलब मेरे को पता है जो हुआ है वो गलत हुआ है. जो हुआ है वो गलत हुआ और मेरे को गंदा भी लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ. पर ब्रो यहाँ पे हर दिन कितने 20 से 40 लोग मरते हैं वही पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से, यहाँ दूसरे किसी रिलीजन की वजह से. वो सब के ऊपर एक आवाज भी नहीं उठ रहा है यहाँ पे. और अचानक से ब्लैक लाइव्स मैटर में इतना बड़ा चल रहा है यहाँ पे. सब लोग पोस्ट कर रहे, ब्लैक पिक पोस्ट करके बोल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर. सीरियसली मैन. True, bhai. Seriously, India, even if India is in, अपने सपोज कर लेते, if supposedly India is into the brim of a
recession, ठीक है, तब भी उन लोग क्या करेंगे? What they do is buy 15 to 12 choppers of Russian choppers and help them give their money, which we don't have. What they are doing, देख, अपने इंडिया में क्या बनते नहीं है क्या एयरक्राफ्ट्स? क्यों टेक्नोलॉजी नहीं है क्या अपने इंडिया में? बट व्हाट दे आर डूइंग, अपने भी ब्रिम एकदम रिसेशन के एकदम बोलते हैं ना एकदम क्लोज आ चुके हैं, फिर भी उनको रशिया से जाके पैसे देके बाहर से उनसे प्लेन्स लेना है। Think, ये चीज कर रहे हैं इन लोग। I think the one thing I want to again make it clear, we are not saying don't support causes, don't support people from other. Of course, Black Lives Matter movement, we all get. I think we can all agree on that. But guys, please understand that our country is in of our need of our help. You know, we are the people making our country. We are citizens of India. You know, people. Trust me when I say this. My social media blows up with Black Lives Matter posts from people who are Indians and they don't post anything about. People who are dying due to the migration. Yeah, it's a simple thing. अभी migration की वजह से. How many हाँ, people migrant workers कर डेली मतलब 30 to 40 पीपल जब स्टार्टिंग के एक डेढ़ महीने के स्पैन के अंदर 30-40 पीपल सिर्फ चलने की वजह से मरे। मतलब दैट्स रियली सैड मैन। मतलब एक टाइम पे यहाँ पे 1000 लोग कोरोना की वजह से मर रहे, तो 40 लोग चलने की वजह से मर रहे हैं। मतलब दैट इज मतलब हद पार लेवल सैड है वो। और एक आदमी भी उसके लिए कुछ नहीं बोला यार, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ये लिटरली दिखा रहे थे कि तुम लोग, मतलब मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, यू एक्चुअली केयर अबाउट ब्लैक लाइव्स मैटर, दैट्स ओके, बट if you don't care about our country then you are seriously ashamed of our country। मतलब मेरे को वो भी पूछना चाहिए, मतलब होगा ना यार ऐसा कुछ, तो तुमको शर्म आ रही है हमारे कंट्री से? अगर हम गलत हैं, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी गलतियां हम करेंगे, वी शुड करेक्ट दैट, वी हैव टू रेज आवर वॉइस दैट। अमेरिका को जस्टिस मिलने के लिए 1.5 हफ्ता भी नहीं लगा, तेरे को पता है? जस्ट 1.5 हफ्ते के अंदर वो 2 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, वो 4 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर केस लग चुके थे, केसेस हो चुका था, उनको सेंटेंस के लिए, प्रिजन सेंटेंसेस के लिए डाल दिया था। यहाँ पे कितने सारे लोग मर के सब लोग बाहर खड़े यार, उनको जस्टिस मिल चुका है। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे जस्टिस मिलना भाई शायद एक नया एक बोलते हैं नियोलिथिक एज था, फिर स्टोन एज था, फिर वो सब खत्म होने के बाद जस्टिस मिलता है इंडिया में। हाँ बे, वहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब सोच, एक ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पे 200 साल पहले राम मंदिर करके चालू हुई थी, अब जाके राम मंदिर बन रही, उनको इतना टाइम लगा, अपने को तो सोच कितना टाइम लगेगा। सोच के देख तू शांति से। I guess that's one of the things. People of our generation, rather, we are all in our early 20s. I think that's something we have to realize, that we are the power of social media, right? We are connected with everybody. See, the reason why we hear so much about America is through social media, not because we went and did our journalistic, because we are journalists or anything. It's just social media news traveling, and this same thing can happen with our news as well. We just need to focus on it. See, all I'm asking is people watching this, please be aware of what's happening in our own country. At least be aware. Don't post stories, don't do anything, don't go to any protest, don't side up with don't bias with a party or something, don't bias with any government, but just stay alert every time. Be aware of whatever is happening in our country, whatever. If one person is dying, why is he dying? Who is behind it? Who is at fault? Everything should be studied. At least being aware is the best we can do, it's the best we can do at the right time, मतलब at the brink of, कुछ एकदम गलत हो रहा हो, तो उस टाइम पे हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम सब यूनिटी पे आके खड़े रह पाए, एक कॉज के लिए हम खड़े रह पाए। मतलब उतना नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, समझ रहे हो? तो नहीं हो तो मतलब वो गलत है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, आई एम एपॉलिटिकल। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एपॉलिटिकल और समथिंग, यू हैव टू टेक अ स्टैंड सम टाइम। अभी नहीं तो बाद में जब तेरे ऊपर आएगा तब तू स्टैंड लेगा ही ब्रो। तब तेरे को स्टैंड लेना ही पड़ेगा, तब के जगह अभी थोड़ा स्टैंड ले ले, अच्छी बात रहेगी, कोई बात नहीं है। That's exactly what I'm trying to say. See, it's not about if you take a stand against the government or anything. No, the government is for the people. If people take a stance, and I'm not saying go protest against the government, please, again, I'm pretty sure we are ordering over very dangerous words here, but I just want to get this message across pretty clear. We are fighting for what's right, what's equal. Exactly. Just be aware of what's going on in our country. See, posting about Black Lives Matter, really good. Good, yeah, please standing up for a cause, like Shrejit said.
stand up for causes which are our own country as well. Another simple thing, cyclone Amphan destroyed a lot of houses in West Bengal. How many people are actually talking about it in our own Talking country? about it. Exactly. Just talking about, just in discussions. See, the things Figuratively, no one, man. therapy session. Exactly. That's why we're doing this in therapy session. Like, talking about, just discussing about it. See, we don't have any solutions. I'll tell you that right now. Exactly. And we are We don't not have saints any as well. We are not saints as well. Trust me when I say that we are not holy guys who just coming and preaching. No, we made our mistakes. We are guilty of a lot of things. But at least this is the right time, I believe, for all of us. No matter what mistakes we've done, or no matter how saintly we were before, we choose to do something about it. We choose to be aware about it. I think that's something I want people to take away from this. Please do be aware. इनफैक्ट तूने बोला ना कि तूने इंजीनियरिंग अच्छा हुआ नहीं किया, ब्रो ऐसा नहीं है। असलियत ऐसा है कि लोगों ने इंजीनियरिंग ऐसी ही की है और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन बन रहा है। एक्चुअल सिनेरियो इंडिया का यही है भाई। आई एग्री, सही बात है। Totally. इंजीनियरिंग क्या, हमारे फील्ड में भी देख, ये दोनों पास आउट है हमारे फील्ड का। तो क्या बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग हर एक फील्ड में ऐसा ही है ब्रो। लेकिन हम लोग उस फील्ड का कुछ नहीं कर रहे। कहीं का भी एक टक का शर्म नहीं है, किसी में भी शर्म नहीं है। सब इंजीनियरिंग करके 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके 2000 केटी लेके आके एमबीए करने बैठे। तो कॉमर्स ले लेते तुम लोग, क्या करने के लिए तूने साइंस लिया भाई? इतना मैथ सीखने की जरूरत क्या थी? मार्क्स ज्यादा आ गए ना इसलिए। भाई तू मार्क्स ज्यादा आ गया मतलब हमारा भी एक एक सीट लेके चला जाएगा तो मतलब कैसे चलेगा बे? मैं कैट सीखने गया था टाइम में। मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? मम्मी पापा मेरे मार्क्स से ज्यादा केटी के मार्क्स ज्यादा है, इसीलिए। मैं कैट सीखने गया टाइम में, वहां पे 3 बीकॉम वाले, बाकी कुछ 16-17 लोग मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर। मैंने बोला मैं क्या पढ़ने आया भाई? मैं क्या पढ़ने आया? किसके लिए? मैं किसके लिए? और मैं नोटबुक में मैं किसी तरह से लिख रहा हूँ तो इन लोग सब सिर्फ नॉड कर रहे हैं, हाँ सर समझ आया, हाँ समझ आया, हाँ समझ आया। उनको सबको तो मैथ्स आता है ना भाई, मैं क्या करूँ? कॉमर्स में मैथ्स नहीं था? अलग होता है भाई कॉमर्स का मैथ्स और मैकेनिकल का मैथ्स। अबे कॉमर्स में स्टैट्स होता है ना बे, स्टैट्स होता है। और सबसे मेजर बात, तू कितना भी मैथ्स कॉमर्स में लेके जा, कैलकुलेटर है हमारे पास, तू वो बात समझ। मैं 2x4 भी कंफर्म करके मैं लिखता हूँ पेपर के ऊपर, तेरे को पता है? उतना वीक हूँ मैं मैथ्स में। 2x4 एक और बार मैं टाइप करके 2 4 हाँ ये सही है ना करके मैं लिखूंगा। भरोसा ही नहीं है मेरे को खुद पे, उतना गंदा है मेरा मैथ्स। Anyway, so I know for our viewers out there we got a little serious, but I personally believe, and we all do genuinely believe, that this message needs to be out there. And we thought, yeah, why not use our platform and decide, just therapy session. You can talk anything you want to. It's your opinions. That's what matters. And so, but we are here about chill talk. And speaking of chill talk, we have very two realists here. Realists in the sense, people who believe whatever happens here happens for a reason, but not due to God. Now, Shrijit, what put you on that journey? तो मैं एक प्रोफेशनल रेशनलिस्ट हूँ, एथिस्ट भी नहीं। मैं मानता हूँ कि कुछ एनर्जी तो है, पर भगवान नहीं है ब्रो, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे चालू हुआ था कि मैं बचपन से तो मैं भक्ति में ही था, अच्छा खासा, इनफ प्रे करता था, ऐसा कुछ नहीं। फिर 10th स्टैंडर्ड आया, मैं बहुत सारे भगवान से प्रार्थना की, फिर भी मार्क्स नहीं दिए भगवान ने मेरे को, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए। तो क्या है कि मैं तो एक तो क्रिश्चियन भी नहीं हूँ कि सिर्फ एक भगवान मेरे लिए मेहनत कर रहा हो। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, पता है तेरे को, मार्केट में है सब लोग ऐसे, मेल फीमेल बहुत सारे, सब लोग कोशिश करते थे कि 80 तो आ ही जाता मेरे को, पर उन लोग ने मेरे को 63 दिया। उस दिन मैंने छोड़ दिया। ये गलत चीज है। ये सिर्फ होप्स है। उस दिन मैं प्योर रैशनलिस्ट बन गया था। मैं छोड़ दिया, भगवान नहीं भाई, ऐसे 13 लोगों से मैंने प्रार्थना किया था, 13 मिलके अगर कोशिश करते तो 80-70 तो आ ही जाता। 63 तो बहुत कम है ब्रो, बहुत ज्यादा कम है। इतना कम तो किसी को नहीं आना चाहिए। तब से मेरे को पता चल गया जो हो रहा है कुछ रीजन की वजह से हो रहा है, भगवान का कोई हाथ नहीं है इसमें, हम ही। अरे इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, ऐसा कि देख, मतलब ऐसा कहते हैं इंटरनेट पे, गॉड इज रफली अराउंड 7000 ईयर ओल्ड, ठीक है? इतना पुराना तब आया, मतलब आफ्टर द नियोलिथिक एज पीरियड, उसके बाद एक्चुअली भगवान का क्रिएशन होता है, वैसा बोलते हैं।
But then see the difference. The Neolithic age actually was in the span of 12,000 years, and तो बीच में गैप आता है 5,000 years का. ये 5,000 साल लोगों ने भगवान पे माना ही नहीं है, मतलब भगवान का एक फंडा था ही नहीं, ठीक है. देयर वाज नो गॉड एट ऑल. तो ये 5,000 साल उन्होंने बहुत अच्छे से बिताए. क्यों? क्योंकि भगवान था नहीं. फिर भगवान आया, तो रिलीजन, क्रीड, फिर लोगों को क्या चाहिए पता है? स्टेटमेंट ऑफ फेथ. और इंडिया नीड्स अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ. मतलब पीपल को अगर एक फेथ का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा ना, तो लोग का डायरेक्शन बदल जाए. एंड दैट लेड अस. एंड एक्चुअली सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि चाइना. क्यों चाइना इतना आगे पता है? क्यों? मतलब क्यों हो सकता है? आप लोग सोचो कि चाइना इतना आगे, मतलब चलो पैसे वैसे छोड़ो, वो इतना आगे क्यों है? उनके थिंकिंग कैपेसिटी इतनी आगे क्यों है? रिलीजन ही अलाउड नहीं है ना वहाँ पे. Communist है. They don't have an opinion of free thinking like us. एग्जैक्टली, दे आर एग्नोस्ट. ठीक है, एकदम एग्नोस्टिक लोग है, एकदम बोलते हैं ना, एकदम एथीस्ट लोग है. उनको कोई बिलीफ नहीं. उनका बिलीफ सिर्फ बोलते हैं ना आइडियलिस्टिक बिलीव्स है. वो एकदम लेफ्ट विंग वाले लोग है, राइट विंग वाले भी लोग नहीं. मतलब दे नीड प्रोग्रेशन, दे नीड रिफॉर्मेशन, दे नीड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ये सब लोगों पे उन लोग मानते हैं. बट अपनी इंडिया वैसी नहीं है. आधी से ज्यादा पब्लिक अपने राइट विंग में पड़ी है, जो जिसको कुछ पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है. और एकदम सेक्युलरिज्म बोलते हैं ना, इसमें पूरा फंडा गलत करके बैठे भगवान के नाम. इंडिया इसीलिए पीछे है. मैं ये चीज में मैंने एक इंटरव्यू देखा था जावेद अख्तर का. उसमें वो एक बहुत 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 सही स्टेटमेंट बोलता है. मतलब मेरे को बहुत जोर से हिट हुआ कि वो जस्ट एक ऐसा बोलता है कि इफ इंटरव्यूअर पूछता है कि, एक तो सबसे पहला तो बात ऐसे चालू होती है कि इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए. तो वो तो एक प्योर एथिस्ट है, जावेद अख्तर रिनाउंड एथिस्ट है वो. तो उसने तो ऐसा लुक्खा बोल दिया कि मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया में कोई मस्जिद, चर्च, मंदिर बने ही ना, सब तोड़ दो. Why do you need a point of concentration? Why does anybody need a point of concentration? ये भी सही बात है. फिर उसने बोला कि आप एक बच्चा, एक न्यू बॉर्न बेबी को बचपन से लेके सारे रिलीजन के बारे में आप उसको इंफॉर्मेशन दो, नॉलेज दो, स्टडी करो एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. उसको बाइबल, कुरान और ये रामायण, महाभारत, जो भी जितने भी हमारे वेद है, वो सबके बारे में उसको एजुकेशन दो. बट डोंट टेल हिम दैट ही बिलोंग्स टू दिस स्पेसिफिक रिलीजन. ठीक है, कि तू एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, उसको मत बताओ. उसको सब चीज का एजुकेशन दो, तीनों रिलीजन का, सारे जितने रिलीजन है वो सबका एजुकेशन दो. फिर एक 19 के 20 के एज के बाद आप उसको एक चॉइस दो कि अब तू बोल कि तेरे को कौन सा रिलीजन सेलेक्ट करना है. तो वो पक्का यही बोलेगा कि मेरे को कोई रिलीजन नहीं चाहिए, बिकॉज ही हैज लर्न टू लिव विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी फेथ. उसको भगवान के बिना वो जीना सीख चुका है, तो उसको जरूरत नहीं है वो चीज का. समझ रही हो? पर मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि फेथ जरूरी नहीं है. लोगों को बहुत मिरेकल्स करता है, एक विल पावर देता है वो फेथ. बहुत अच्छी बात है. एक तरफ से एक फेथ है, एक भगवान के ऊपर, एक एंटिटी के ऊपर विश्वास है. इट शुड नॉट मूव इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन. इतना ही, इट शुड नॉट मूव इनटू रॉन्ग डायरेक्शन. किसी को रॉन्ग डायरेक्शन में लीड नहीं करना चाहिए फेथ. मीनिंग उसका वर्ड इट शुड बी बोलते हैं ना, अ बोल्ड मीनिंग इट शुड हैव, rather than a generalized meaning. It should have a bold meaning. तो लोग इसको ज्यादा मानेंगे. हमारे लोगों ने डराने का धंधा चालू किया ना. हमारा हिंदुइज्म प्योर है, क्रिश्चियनिटी प्योर है, मुस्लिम भी प्योर ही है. सब रिलीजन एट कोर कंसेप्ट बहुत प्योर है. वो जो डराने का धंधा चालू है, वहां से इंडस्ट्री इनका चालू है, इनका बिजनेस चालू हुआ कि तू ये कर तो तेरे को पाप नहीं लगेगा, तू ये कर तो तेरे को पाप नहीं लगेगा, तू ये करेगा तो तेरे को पाप लगेगा. ये स्टोन एज खत्म हुआ, फिर अपना आया मेटल एज. आयन एज में धंधा स्टार्ट हुआ. धंधे के साथ साथ भगवान भी स्टार्ट हो गए, चालू हो गया. आप पता है? हाँ, वही चीज है. Just to give some historical context here, the first gods that humans were taught to worship was fire. Fire was our first actual god, and then the weather, then different religions, different gods, and yes, I rightly agree with my fellow friends here that faith is very important, but do you need a single entity to tell you what to do, what not to do? That's totally up to you. It's totally up to you. Now, I see religion as a set of guidelines, a set of moral ethics, which every human being should have. Any religion, for that matter, Hinduism, Christianity, Buddhism, or Islam. But the way it is corrupted is by people. So please do remember that next time you think about it.
we are the ones who bring up the punishment. We are the ones who bring up the sense of if you don't do this, then you'll be sinned. So people out of fear do something which they don't truly understand. Now, religion is very important, mind you. My point has always been on the fact that if somebody believes in religion, that's their total. That's up to them. It's their faith. Who am I to question it? Seriously, it's right. We are no one to question anybody else's faith. This is what we believe. And I want to get thoughts of Pratish and Jaideep on this. I think it's a topic which we all should, at least discuss about. फेथ के बारे में मैं भी वही मानता हूँ कि फेथ तो होना ही चाहिए, क्योंकि फेथ ना एक गाइडेंस देता है. अगर कुछ नहीं होगा मानने के लिए तो लोग जिएंगे किसके लिए, क्या मानकर जिएंगे. सबको इतना नॉलेज नहीं होता, मतलब वो होता है ना कि कुछ एक होना चाहिए जिसको मान के लोग जिए, जिस पे विश्वास रखें. Exactly. अगर वही नहीं होगा तो केओस हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. सही बात. वो तो है ना ब्रो, बट व्हाट पीपल थिंक इज, जैसे कि फेथ है, ठीक है, ये फेथ को क्या करते हैं, नॉलेज और आउटलुक को मिक्स कर दे. नॉलेज अलग चीज और नॉलेज को आउटपुट के और उसका अलग सा आउटलुक दिखाना अलग चीज है. तो दे क्लब अप दीज थिंग्स एंड गिव अ इररेशनल आउटपुट जो किसी लोग को काम तक नहीं आना. फिर भी द पीपल आर देयर, द सोसाइटी इज देयर टू फॉलो दैट रूल. सबसे बड़ी गलत बात है. तो यहाँ पे पहले ही वही हुआ यार, क्या बोला, इंडियन पॉपुलेशन है. इंडियन पॉपुलेशन में एक चीज तुम, हमारी पॉपुलेशन में ये भी एक बात है कि हम लोग एक चीज को मान के चले, वो अलग बात है. उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होके हमारा कुछ एक जिंदगी का, हमारा लाइफ का एक मेन चीज उस पर डिपेंडेंट होके रखना, दैट इज रियली रॉन्ग मैन. मतलब तुम लोग एक एंटिटी जो तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, वो चीज के ऊपर तुम लोग मान रहे हो, तुम लोग एक गुड लक के लिए उसको प्रे करते हो, ये करते हो, ये सब सही बात है. पर उसके ऊपर टोटल डिपेंडेंट रहना, कि जैसे कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया था, दैट इज टोटली रॉन्ग ब्रो. मैं वही बोल रहा हूँ, मार्क्स के लिए समझ रहा है. प्रे करो, मतलब प्रे करो, इसमें कोई गलत नहीं है. जैसे तू बोल रहा है मैंने प्रे किया था 10th स्टैंडर्ड में, परसेंटेज नहीं आया. प्रे करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर साथ में मेहनत भी करो. मेहनत भी करो, एग्जैक्टली. ऐसे तो कैसे होगा. Pretty quiet about this. What do you think? प्रति सोच रहा है यार मैंने कोई प्रे नहीं किया था, वरना मेरे भी आ जाता. नहीं देख, एक और कांसेप्ट है. व्हाट हम लोग जो प्रे कर रहे हैं ना, व्हाटएवर वी आर प्रेइंग टू द गॉड, इट्स ओनली प्रेइंग टू आवरसेल्व्स इन द ब्रेन. अपने खुद के ब्रेन को फीड कर रहे हैं कि these are the statements which I have to मतलब see. वो हमें इसको ज्यादा एम्फसाइज. पॉजिटिव इफेक्ट दे अभिषेक रहा है ना. ऐसे जोर से सच मत बोल, अभिषेक ऐसा जोर से सच मत बोल, लोग डर जाएंगे. Exactly. We are not actually praying to that idol sitting over there. We are actually praying to our own brain कि अपने को खुद को वो, मतलब we are giving ourselves a will power, a positive energy, a vibe, so that we carry forward in a good direction. But नहीं, लोग नहीं मानेंगे. नहीं, हम पे नहीं, वो भगवान जो बैठा है ना, वो शायद मेरे को रोकेगा मरने से. नहीं होने वाला वो चीज. बग्स भी लाइक है, तू सुन नहीं रहा था, मैं तो तेरे को बोल रहा था. अरे भगवान बोल रहा था कि मैं पर यहाँ भगवान राजू का पेपर देख रहा था भाई, उसने भी ब्रेक किया. सब जगह तो कैसे जाए. कल तो मैंने भगवान से बात किया था, ऐसा तो नहीं हुआ था. That's not fair. आपने तो बोला था कि मैं हर जगह हूँ यार, ऐसा नहीं चलेगा. ये अभिषेक गलत बोल रहे हैं ना. भगवान सच बोलो ना भगवान. अमरनाथ में जाने वाले लोग 50 पूरी बस पलट जाती है. मतलब भगवान इतना प्यार कर दिया, साथ में ऊपर ही बुला लिया, चलो आई जाओ तुम लोग, तो आई जाओ. मतलब भाई बेचारे लोग प्रे करने जा रहे हैं. कितने केसेस है यार, सोचना यार, कितने डिवोशन के साथ जाते हैं और ऐसा हो जाता है उनके साथ. अभी जस्ट वो ये राम मंदिर के केस पे ले ले, मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा, मैं जस्ट वो एक सिंपल सा फैक्ट है. हम हिंदूज है, ठीक है, हम हिंदूज, वी ऑल आर हिंदूज. तो तेरे को पता है, हम में ऐसा कोई बिलीफ नहीं है कि हम एक इमारत को मंदिर मानते हो, एक बिल्डिंग को मंदिर मानते, ऐसा है ही नहीं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं क्लियर एग्जाम्पल दे देता हूँ. तुम्हारे घर पे एक छोटा सा गणेश का मूर्ति हो, वो तुम्हारे घर के सामने के या बाजू के कोई भी पेड़ के नीचे आके तुम रख दोगे, तो कल जाके 100 लोग वहां पे प्रार्थना करने आएंगे, प्रे करने आएंगे, वो हमारा मंदिर बन गया. ठीक है, हम लोग कोई बिल्डिंग पे एक्चुअली मानते ही नहीं थे, कभी भी नहीं मानते. तो हमको एक्चुअली एट द फर्स्ट पॉइंट, ये पॉलिटिकल होने से पहले एट द फर्स्ट पॉइंट, हमको राम मंदिर वही मस्जिद के ऊपर बनाना जरूरी नहीं है ब्रो. तू वहां का राम मूर्ति हटा के दूसरे कई जगह पे जाके रख देगा, तो वो भी हमारा मंदिर ही बन गया. उसके आजू बाजू इमारत बना दे, अगर तेरे को इमारत बनाने का इतना इच्छा है
तो बना दे। तो ये सब चीज बहुत मैनिपुलेटेड है। सारा रिलीजन अभी इतना मैनिपुलेट हो गया, इतना हद पार मैनिपुलेट हो गया है कि अब क्या मैनिपुलेट सच कुछ क्या नहीं हुआ नहीं है, पैसा है, पैसा पैसा, और कुछ नहीं है, पैसा लूट रहे हैं। फुल बिजनेस है, एवरीथिंग इज बिजनेस में। And I think that's how today's world is like, money runs everything. Yes, faith is there. Yes, honesty is honestly there. There are good people in this world. But again, money controls everything. Everything. And every religion teaches us. That was not the point here. The point was about faith. The Bro, faith should be there. I'm getting there. Give me a chance. हाँ, आजा भाई, आजा, मैं लेके आता तेरे को, आजा वापस। कूद मत प्रत्युष, तू मत कूद तू, ठीक है? मैं नहीं मानता भगवान में। In every religion, greed is a sin. Why is greed a sin? Money is a type of greed, right? And if you follow your religion properly, if you have faith in what your religion teaches you, then you won't fall into greed. But be realistic. Realistically speaking, we know that's not applicable for a human being. That's a moral guideline which we have to follow, but I've honestly not seen a lot of people follow it, And it'll come, and I'm very sorry. I was grown up in a very Hinduistic household. Both my parents used to pray. It didn't help their marriage. Mine too. It didn't help their marriage a lot. It didn't help me a lot, but still, they used to pray, okay? But my mom used to tell me the story. It was a story where the whole city is flooded. I'm pretty sure you guys, a lot of people must know this. The whole city is flooded. There's a person sitting on top of a rooftop, and the boat comes to save that person. And the guy is like, I'm praying to God, God will save me, I don't need your help. And then another person comes to save him. He's like, the water's rises a bit more. It's like, no, God is going to save me, I prayed to him, I don't need your help. And then finally he drowns because he doesn't take anybody's help. And then he goes to heaven. Then he asks God, God, I've been praying to you, why didn't you help me? He's like, fool, I sent you those 2 boats. Exactly the point, man. I think that's what you're trying to say. And please, the people watching, we are not saying religion is bad. We're not saying that everybody be a realist and be like us. No, you are entitled faith is good. To your opinion. You're entitled to your faith. Please do remember that. This is just something we believe it's worked for us so far, and that's what we want to keep on working on. 10th के बाद से मैंने प्रे नहीं किया, मैं जिंदा हूँ। मुझे ऐसा वो पता है, देख सीन क्या है, बोल फेथ क्या है? फेथ इट इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सही बात है। Faith is actually a sense of insecurity for those who misjudge that word. Faith ऐसा नहीं होता ना, फेथ इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी देख, मेरे को अगर लग रहा है मेरे को यार नहीं, मेरे से नहीं होगा, वहीं पे अभी मेरा एक दोस्त है अभिषेक मेनन, ठीक है, वो मेरे को बोलता है नहीं ब्रो तू कर सकता है, बराबर। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ये बोल रहा है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हाँ यार ठीक है ये बोल रहा है, शायद मैं कर सकता हूँ, और मैंने कर दिया। बट अभी तो इसको मास पे लेके जा, अगर मास पे कोई लीडर नहीं है, ठीक है, अभी एक एंटिटी क्रिएट हो चुकी है कि दिस इज अ पर्सन, दिस इज एन एटर्नल बीइंग, दिस विल गाइड यू। तो बेसिकली पीपल ऐसा लोग क्या है कि ऐसा उनका सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है उसके साथ है, बराबर। तो अभी उन लोगों ने क्या किया कि हाँ वो बोलेगा मैं ऐसा करूंगा, अगर मेरे से कुछ गलत हुआ मैं ऐसा, मेरे को बता देगा। बट द थिंग इज अभी तक किसी ने उसको देखा नहीं है, किसी ने उसको सुना नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है। वो खाली अपने एथिक्स पे, जो उनके पर्सनल एथिक्स है, उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो बेसिकली उनकी सिक्योरिटी उनने किसी के और के हाथ में दे रखी है। But that will break, bro. ये जो चीज जो तू बोल रहा है ना, is that's perfectly fine until and unless अपने एक saturation point नहीं आ जाए इस faith के लिए। किस तरीके से पता है? Example ऐसा है, अभी तूने जैसे बोला कि मैंने एक faith create किया, and that is what the creation of creed. Okay, आपने जो creed बोलते creed को पूरा, and that goes into a threshold line when people around it, मतलब अपने जो human tendency है वो किसी एक बंदे का अलग हो जाता है ना, तो फिर वहां से उसमें ना लूप होल बन जाता है कि वो फेथ में लूप होल आ गया है, एंड देन पीपल स्टार्ट टू डाइवर्ज कि चलो यहाँ जाओ कि वहां जाओ, एंड देन पीपल डाइवर्ज लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, एंड देन इट गोज कहीं पे भी।
फिर अपने को पता नहीं चलता कि which faith to actually we decide which faith to follow, अपने को वो मालूम नहीं फिर पड़ता। पता है सिक्योरिटी में एनार्की आ जाती है। गई ना, एक पॉइंट के बाद सिक्योरिटी कहाँ वही रहेगी? एनार्की आ गई ना पूरी। I guess we can तो keep on अभी hopping. चल एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो लोगों के पास है। डोर के ऊपर लॉक है, गोदरेज का लॉक लगा हुआ है। गोदरेज वाले ने बोला मैं तुमको देता हूँ गारंटी कि तुम्हारे घर में चोर नहीं घुसेंगे, तुम ये दरवाजा लगा दो। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलीफ, सेंस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसको अच्छा डिजाइन की लैंग्वेज में पुट करें तो ब्रांडिंग। उस ब्रांड पे मेरे को ट्रस्ट वाइड है कि स्क्रीन वो, में देखने बोल रहा हूँ तेरे को, मैं थोड़ा लार्ज आउटपुट में देखने बोल रहा हूँ। एक बड़ा सा आउटपुट वही देखेगा। यही लोग नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि ये लॉक मेरे को बचा देगा। वो ये नहीं हाँ, देख वो रहे चीज अगर नहीं वो होना बड़ा चाहिए। सामने वाला बड़ी मशीन ले आया तो ये लॉक कुछ नहीं करेगा। उसके लिए तेरे को बिग पिक्चर देखने की, तेरे को वो अपने सबको छोटा करना पड़ेगा, तेरे को बाहर निकल के देखना पड़ेगा जो तू बोल रहा है। एक मिनट. Okay, hold on a second. I'm pretty sure we can keep on debating about this topic because again, there's a very polarizing and everybody has their own opinions. And we're not here to change anything. Opinion debates you nahi hai. So let's just drink to that. It's just to share our own opinions. Actually, the glass is empty. I'm just showing the gesture of drinking. Same. नहीं मेरे पास पानी है। I guess that's the point of this. Like, तेरे पास पानी है? मेरे बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तेरे पास क्या है? मेरे पास पानी है। बहुत है। You know, that's the point. It's that every one of us has our own opinions based on our own life experiences, right? And no one is here to question or rather say that, no, you're wrong. No, we don't know. According to us, it may be wrong, but according to it, it may be right. Now, that is the reason why we're doing this. So we can connect, talk about this, and we get to learn other experiences as well. Now, something I might have a boxed about experience until right now, reality right now. Now, something that Srijit, Pratyusha, Menon, or Jaydeep said right now, might have opened my mind up. It's like, oh, okay, that's another way to think about it. That is the reason why we started this whole therapy session. It genuinely is. And that's why I want a lot of people to come on the show so that, you know, we can broaden our own horizons, you know, like, because there is no one right way to do anything. That's exactly what I personally do. I personally genuinely. What about the introduction section? हाँ, अपने ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तूने डायरेक्ट इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया। मैं और श्रीत तो रह गए थे वैसे। डायरेक्टली मैंने तुमको I did introduce you उसके बाद, ठीक है? Yeah. I think you're बेसिकली मैंने हमारे कॉलेज में एक अलग तरीके से जाना जाता है। क्या इस चीज को आगे बढ़ाएं? नहीं, मैंने ना हमारे कॉलेज में एक अलग तरीके रेड्डी से को जाना खत्म जाता करने है। दे, रेड्डी खत्म कर, उसके बाद तू बोल। अभी 2.5 मिनट बचे। हाँ चल, okay. So I guess that, so before I was so very politely interrupted by my colleagues, that was the point I was trying to make. You know, everybody has their own opinions, and it's okay to have your own opinions. And yes, I said we are going to go into a much more fun topic, but we somehow stumbled across faith, and so it is a serious topic. But I genuinely think that this sharing of opinions and discussion would do you guys some good. And please have discussions with your family, with your friends, because unless we talk about something, we don't necessarily know what's inside somebody else's head. And we want to share, want to be united across many things. And if anything, this lockdown has shown us, people, we got to be aware and be together. Because even one life is worth the same. Exactly. This lockdown has actually showed us that humans are nothing. Humans are nothing in front of a mere virus also. Exactly. मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में बता दिया कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है। औकात क्या है, तेरी औकात क्या है बता दिया भाई। भाई। Anyway, guys. Actually, this lockdown was much helpful, useful for I think सबके लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए ये लॉकडाउन एक बोलते ना, it would be a turning point सबके लिए, कुछ ना कुछ के लिए। Even if हॉबीज परस्यू करने के लिए हो, आप लोगों ने जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया, it induced something, no, this lockdown induced something or the other in people's mind, so it actually it is an helpful thing, no doubtedly. But for those who were affected, were the victims for this, deeply saddened by that thing, but we can't do anything.
But it's just, this is just a silver lining. And I guess thank you guys for both being on the show. And I guess Thanks, man. that's Thanks the session for today. I hope you guys enjoyed it. Of course, man. Thanks a lot Fully yes, bro. for bringing a undereducated commerce student to this platform. Between you great minds. Thank you.